تعلیمی سفر شروع ہوتا ہے اور ریسرچ کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اپنا نام پیدا کرتے ہیں. پچھلے 2 دہائیوں سے سویڈن میں مقیم اور سویڈن میں رہتے ہوئے اپنا جو دل ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا دھڑکتا ہے, اور پاکستان کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں وہ کمیونٹی کے حوالے سے بھی, اور ساتھ ہی ساتھ سویڈن کے ساتھ جو کمیونٹی وابستہ ہے اس میں بھی ان کی گراں قدر خدمات ہیں. میری مراد جناب عارف محمود کسانہ صاحب. میں سب سے پہلے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور السلام علیکم جناب عارف صاحب. جی وعلیکم السلام, اور میں ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے موقع فراہم کیا کہ کچھ باتیں کی جا سکیں. عارف صاحب, سب سے پہلے پروگرام گیسٹ آور میں آپ مہمان بنے, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ایک موقع فراہم کیا, اور یقیناً جو اس وقت صورتحال ہے کہ یعنی سویڈن میں اس وقت بیٹھے ہوئے آپ جو ہے وہ آن لائن ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس پروگرام میں شامل ہے. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. جی بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, اور میں نور ٹی وی کی انتظامیہ کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے بہت سے دوستوں سے, چاہنے والوں سے, ناظرین سے آج کچھ باتیں ہو سکیں. عارف صاحب, جس وقت میں آپ کا پروفائل وہ دیکھ رہا تھا تو ایک بڑی مجھے ایک حیرت بھی ہوئی کہ آپ جیسی شخصیت جہاں رائٹر بھی ہے اور اس کے ساتھ آپ کالمسٹ بھی ہیں, اور پھر ایک ریسرچ میں جو کہ میڈیکل ریسرچ کے ساتھ اس وقت آپ وابستہ ہیں, اور یہ مختلف طرح کی جو ڈائمینشنز ہیں, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ اگر تھوڑا سا بریف کریں, یا کہ آپ یعنی بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں کہ کہاں سے آپ کا تعلق ہے, تاکہ ہمارے ناظرین بھی جان سکیں, اور انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. جی بہت شکریہ جی, یہ آپ کی محبت ہے, آپ نے اس طرح سے کچھ تعارف پیش کیا. بات یہ ہے کہ جب انسان میں ایک پیشن اور جنون ہوتا ہے تو وہ بہت سے کام یک وقت کر لیتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اور بہت سے لوگ ہیں جو مختلف شعبہ جات میں وہ کام کر رہے ہیں, اور ہر شعبہ میں ان کا جو ہے وہ اپنا اپنا مقام ہوتا ہے. میرا تعلق سیالکوٹ اور بھمبر آزاد کشمیر دونوں جگہ سے ہے, اور اس کے بعد میں 1995 میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں آیا, اور تب سے میں یہیں پہ رہ رہا ہوں. تقریباً 25 سال کا عرصہ ہو چلا ہے. یہاں آنے کے بعد یہاں سویڈن کی سب سے بڑی وہ میڈیکل یونیورسٹی ہے, کارولینسکا انسٹیٹیوٹ, جو ہر سال فزیالوجی اینڈ میڈیسن کے نوبل پرائز کو ایویلیویٹ کرتی ہے. وہاں آپ کی میں نے مزید تعلیم ہیومن ایمبریالوجی میں اور نیوٹریشن کے شعبہ جات میں حاصل کی, اور تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اسی میڈیکل یونیورسٹی میں میں ریسرچ کے شعبہ میں کام کر رہا ہوں. ہماری جو کور فیسلٹی ہے وہ جینیٹک انجینئرنگ اور جینز کی بنیاد پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی ہم کھوج لگاتے ہیں کہ یہ جو اسپیسیفک جین ہے اس سے کون سی بیماری ہوتی ہے, اس کا علاج کیا ہے, اور کس طرح سے انسانیت کو ان بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے. یا بہت سے ایسے جوڑے جو بے اولاد ہیں, وہ اگر وہ جین کی وجہ سے ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو اس کا کیا حل ہے. تو یہ سمجھیں کہ جو جینیٹکس کی جینیات کی بنیاد پہ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کی تحقیق میں میرا کام ہے, اور الحمدللہ اس میں بہت خوش ہوں. میرا پیشن بھی ہے اس میں. تو یہ تو میرا ہو گیا پروفیشنل جو ہے وہ آسپیکٹ جو کہ یہاں میں کام کر رہا ہوں. اس کے ساتھ ہی مجھے لکھنے کا شوق زمانہ طالب علمی میں سے تھا, اور پھر یہاں آ کے میں پہلے لندن میں کافی عرصہ لکھتا رہا ہوں, اور جیو کے ساتھ وابستہ رہا. پھر ابھی میں صاف کے ساتھ وابستہ ہوں, ان کے ادارتی صفحہ میں میرا کالم آتا ہے, اور باقی بھی بہت سے جو اخبارات ہیں پاکستان سے, جموں سے, سری نگر سے, ان میں بھی میرے کالمز وغیرہ چھپتے ہیں. تو موضوعات وہی ہوتے ہیں. موسٹلی میں وہ موضوعات لیتا ہوں جو سماجی نوعیت کے ہیں, میڈیکل ریسرچ کے ہیں, فکر اقبال کے ہیں, قرآن کی روشنی ہے, ہمارے جو یورپ میں رہنے والے لوگوں کے مسائل ہیں, بچوں کے مسائل ہیں. تو یہ جو بھی آپ نے سوال پوچھا تھا, بات یہ ہے کہ جب انسان میں ایک پیشن ہوتا ہے تو آدمی وہ بہت سے کام کر لیتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا, میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے وقت کا بہتر استعمال کروں اور اس کو آرگنائز طریقے سے کروں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ وہ بہت سے کام لے رہا ہے یہاں پہ. ابھی آگے مزید جب بات چیت ہوگی تو میں اور بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کس حوالے سے یہاں پہ عملی نوعیت کے کام کس طریقے سے کر رہے ہیں اور باقی کام کس طرح سے کر رہے ہیں.
माशाल्लाह एक लंबा सफ़र और इतनी जिस तरह आपने मेडिकल के हवाले से रिसर्च के हवाले से अपनी जो है वो इस वक्त जो आपकी एक जेन्युइन फील्ड है और उसके साथ साथ आपने जो एक एज ए राइटर जो अदीब का एक काम है और बुक्स लिखना और ख़ास कर आपने बच्चों के हवाले से जब मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा कि बच्चों के हवाले से आपने लिखना शुरू किया और यकीनन जो बरतानिया और यूरोप में रहने वाली फैमिलीज़ हैं पाकिस्तान या किसी भी एशियन कंट्रीज से बच्चों के हवाले से ही आपका जो है वो ख़ास तौर पे लिखना वो उस पे आपने एम्फेसिस क्यों किया, उसके पीछे क्या वजूहात थी? जी बिल्कुल, बहुत अहम सवाल आपका। मैं भी नॉर्मली जैसे लोग कॉलम्स लिखते हैं, मैं कॉलम्स लिखता था और मेरे जो सिलेक्टेड मज़ामीन थे उनका मजमूआ अफ़कार ताज़ा के नाम से जो है वो शाया हो चुका है। ये अलमिया है कि बच्चे हम कहते हैं हमारा मुस्तक़बिल है, और जो यूरोप में हम लोग हैं हम बच्चों की तालीम और तरबियत के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, लेकिन बच्चों के लिए लिखने वाले बहुत कम हैं। पाकिस्तान में भी और यूरोप में तो आप उंगलियों पर लोगों को गिन सकते हैं। यानी जो हमारा मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, उसके बारे में हम काम नहीं करते। तो मुझे ये अल्लाह ताला ने बस काम लेने होते हैं, और मैं समझता हूँ कि जो बच्चों के लिए लिखना है ये अल्लाह ताला ने ही मुझसे काम लिया, जिसकी मैं अगर तफसील जब आपको बताऊंगा तो नाजरीन भी यकीनन इत्तफाक करेंगे। हुआ ये कि मेरे भाई हैं वो लंदन में रहते हैं, उनकी बेटी जब स्कूल जाना शुरू हुई तो उसने एक दिन अपनी वालदा से घर आके पूछा कि अम्मी हम मुसलमान क्यों हैं। अब एक बच्ची का बड़ा एक नॉर्मल सा सवाल था। जब वो उस बच्ची ने अपनी माँ से पूछा तो उनकी माँ भी हैरान होगी, उन्होंने तो कभी अपने आप से भी नहीं पूछा होगा। और फिर वो उन्होंने मुझे फोन पे किया कि भाई आप बहुत कि हम मुसलमान क्यों थे, और यार मैं इस्लाम कब मैंने कबूल किया। तो कुरान की आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये बड़ी बड़ी ही दिलचस्प और बड़ी इसमें सोचने वाली बात है। जो कुरान कह रहे हैं कि ए ईमान वालों ईमान लाओ, तो जो पहले ही ईमान वाला वो ईमान कैसे लाए, एक सोचने वाली बात है। तो कुरान का मतलब ये है कि आप अपने शऊर के तौर पे आप ईमान लेके आए। और जब वो सवाल मेरे सामने आया तो मेरे लिए लिखना बहुत मुश्किल था। अब बहरहाल मैंने उस पर कहानी एक लिखी कि हम मुसलमान क्यों हैं, वो बहुत पसंद की गई। अब उस कहानी में यह था कि हम मुसलमान इसलिए हैं कि हमारा ईमान है इन चीज़ों पे। अब बच्ची का अगला सवाल था कि ईमान किसको कहते हैं। अब फिर मैंने ईमान को वो मुकालमे की सूरत में बताया। फिर ये कि वो मेरी बेटी, उसका सवाल था कि सब कहते हैं हमारा दीन सच्चा है, आप कैसे कह सकते हैं कि इस्लाम ही सबसे सच्चा दीन है। अब आपने ये बच्चे को उसकी ज़हनी सतह के मुताबिक समझानी है, बड़े से बात नहीं करनी। और मेरी तमाम कहानियां मुकालमे की सूरत में एक दिलचस्प मुकालमा भी है, कहानी भी है और उसमें मालूमात भी है। फिर यह सवाल था कि हमारी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती। फिर इस तरह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम मिलाद क्यों मनाते हैं। फिर इस तरह के बेशुमार सवालात जो बच्चों के जहन में आते रहे। जब ये कहानियां शाया होगी तो यहाँ स्वीडन में हमारे पाकिस्तान के सफीर थे जनाब तारिक ज़मीर साहब, और चंद लंदन के एडिटर थे जनाब ज़हूर नियाज़ी साहब, इन लोगों ने और प्रोफेसर शरीफ बकार साहब है लंदन में, इन जैसे दोस्तों ने मुझे कहा कि आप इसको ज़रूर एक किताब की सूरत में शाया कीजिए ताकि लोग ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह बाद में वो मेरी किताब सबक आमोज़ कहानियाँ नंबर 1 के उन्वान से शाया की। और मैं आपको बताऊं कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का इतना एहसान हुआ कि इतनी मकबूल किताब हुई है कि उसका 3रा एडिशन छप रहा है। हालांकि आज के दौर में किसी किताब का 2रा एडिशन छपना मुश्किल है। और फिर यहाँ तक नहीं, उस किताब के दुनिया के 18 ज़बानों में तराजुम छप चुके हैं। अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, अरबी है, फारसी है, हिंदी है, डेनिश है, जर्मन है, यानी 18 ज़बानों में वो किताब जो है वो तर्जुमा हो चुकी है, अभी पंजाबी में भी हो चुकी है। और इसके साथ ही जो लोग पढ़ नहीं सकते, बसारत से महरूम लोग होते हैं, उनके लिए बैरल स्क्रिप्ट में अंग्रेजी और उर्दू में भी छप चुकी है। तो जो मैं आपको कह रहा था कि अल्लाह ताला ने जब किसी से काम लेना होता है, मैं शायद इस काबिल नहीं था, लेकिन ये अल्लाह का मुझ पे फजल है। फिर ये पहली किताब जब शाया होगी तो बच्चों के सवाल बढ़ते गए कि मुसलमान दुनिया में दूसरी अक़वाम से क्यों पीछे है। फिर कामयाब इंसान किसको कहते हैं, मोमिन की जिंदगी क्या होती है, इस तरह के सवाल। तो फिर वो दूसरी किताब मेरी जो है सबक आमोज़ कहानियां 2, वो जिसने किताब पढ़ी है यकीन करें कि दुनिया के बेशुमार ममालिक में उस पे तकारीब हुई हैं। तो बच्चों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह शायद मैं भी ना लिखता, लेकिन ये अल्लाह का ऐसा फजल था कि उस बेटी ने सवाल किया और उसकी तरफ में आया, और ये 2 किताबें जो हैं वो बच्चों के लिए आई जो बहुत मकबूल हुई। इंशाल्लाह इस पे मैं मजीद
लिख रहा हूँ, आइंदा आने वाले दौर में मैं बच्चों के लिए मजीद लिखूंगा। तो बच्चों के लिए लिखने का इस तरह से जो है वो मुझे जो है वो मौका मिला। अच्छा आरिफ साहब, यकीनन किताब के साथ एक ताल्लुक और उसके साथ ख़ास कर आपने जो एक थीम चूज़ की और बच्चों के साथ जो है बच्चों को लर्न करने का और उनको आगे बढ़ने का जो उनके जहन में सवाल आते हैं और ताकि ये सवालात भी जो है वो जान सकें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकें, तो उसके साथ साथ यकीनन अब एक मॉडर्न दौर भी है और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हवाले से भी जो है वो चीज़ें अब बच्चों की पहुंच में भी है। मिसाल के तौर पर लैपटॉप कह सकते हैं, मोबाइल कह सकते हैं और इसी तरह की दीगर डिवाइसेस भी। तो किताब का रुझान ख़ास तौर पर जो है यूके और यूरोप में तो बहुत कम होता जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इन मॉडर्न डिवाइसेस का भी जो है वो सहारा लेना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस या बच्चों की जो किरदार साजी की जा सके या उन तक जो पैगाम पहुंचाया जा सके उसमें भी जो है वो एक